हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट द प्रेपरेशंस ऑफ अमाइन्स। इससे पहले हमने जो यहाँ पे मेथड्स फॉर द प्रेपरेशंस ऑफ अमाइन्स डिस्कस किए हैं, दैट वाज अबाउट होफमैन्स अमोनोलिसिस मेथड एंड आफ्टर दैट रिडक्शन मेथड्स by the reduction of nitro compounds, by the reduction of cyanides, isocyanides, we are in a position to prepare amines, and after that by the reduction of acid amides, and after that reductive amination of aldehydes and ketones, and after that यहाँ पे हमने एक important reaction discuss की थी, Hofmann's bromamide degradation and Gabriel thalamide synthesis. Through these very methods we were in a position to prepare amines. Now the last method for the preparations of amines is by a very important rearrangement. These are three rearrangements, but the product is same. The product is same, and also the intermediate is same, and also the intermediate is same. My dear students, these very examples related to the preparations of primary amines are very important from any entrance examination point of view. This is the last method we are going to discuss about the preparations of amines, that is by Curtius rearrangement, Schmidt rearrangement and Lawson rearrangement. One by one we will discuss these very rearrangements. यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है. With the help of that very chart, you will be in a position to remember these very rearrangements. And my dear students, the first rearrangement is Curtius rearrangement. In case of Curtius rearrangement, what is the substrate? In this very case, the substrate is the reactant. The substrate is the reactant. In case of Curtius rearrangement, there is the thermal decomposition of acid azides. In case of Curtius rearrangement, my dear students, that we are in a position to prepare one not amine, that is primary amine. How? When acid azides are subjected to heat, or in other words, there is the thermal decomposition of acid azides. Acid azide has the general formula RC double bond O single bond N3, single bond N3. यहाँ पे मैंने लिखा है plus heat means thermal decomposition in the presence of any solvent. That very solvent will be C6H6 or CHCl3. CHCl3. C6H6 is the benzene or CHCl3 is chloroform. It is chloroform or benzene. My dear students, अगर आप लोगों को Curtius rearrangement की definition याद करनी होगी तो remember it that in case of Curtius rearrangement there is the thermal decomposition of acid azides in the presence of benzene or chloroform, and there is the formation of alkyl isocyanate. This is the formula of alkyl isocyanate or N double bond C double bond O. This is the intermediate. That very intermediate upon hydrolysis gives us the primary amine. Actually, here we are discussing the preparations of amines. With the help of Curtius rearrangement, how when acid azides are subjected to heat in the presence of benzene or chloroform, there is the formation of an intermediate alkyl isocyanate, and which upon hydrolysis gives primary amines. That means हमेशा याद रख लीजिए, in case of Curtius rearrangement, the substrate is acid azide. इसके बाद हम एक एक करके इनका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेंगे. पहले आप इस चार्ट की तरफ देख लीजिए. After that Schmidt rearrangement. In case of Schmidt rearrangement, the substrate is carboxylic acid plus HN3. It is the hydrozoic acid. HN3 is the hydrozoic acid. NH3, it is ammonia. NH3 is ammonia. My dear students, NH3 is ammonia. HN3, it is hydrozoic acid. It is hydrozoic acid. In case of Schmidt rearrangement, when carboxylic acids are treated with hydrozoic acid in acidic medium, याद रख लीजिए, in acidic medium, there is the formation of
अल्काइल आइसोसाइनेट, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट अल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स प्राइमरी अमाइन्स। सबस्ट्रेट यहाँ पे आप किस तरह से पहचान सकते हो इन केस ऑफ श्मिट रीअरेंजमेंट, सबस्ट्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हाइड्रोजोइक एसिड, इन केस ऑफ कर्टियस acid azide with heat. After that Lawson rearrangement. Lawson rearrangement में hydroxymic acid RC double bond O NHOH when it is treated with acid chlorides, there is the formation of this very intermediate upon hydrolysis gives primary amines. बहुत सिंपल है, इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा कि हाउ विद द हेल्प ऑफ Curtius rearrangement, Schmidt rearrangement, Lawson rearrangement, we are in a position to prepare primary amines. बस इतना याद रखना है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन है, इंटरमीडिएट तीनों में एक ही बन जाता है, which upon hydrolysis gives primary amines. याद कीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का मैकेनिज्म यहाँ पे देखा होगा, वहां पे भी इंटरमीडिएट अल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो जाती है और which upon hydrolysis gives us the primary amine. मैकेनिज्म जो वहां पे मैंने दिखाया है alkyl isocyanate से when it is subjected to hydrolysis, यहाँ पे किस तरह से primary amine बन जाता है, जहां जिस तरह से मैंने होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में मैकेनिज्म दिखाया है उसी तरह से यहाँ पे भी मैकेनिज्म है, वहां पे भी सेम इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। और आप लोग अब याद रखोगे इन केस ऑफ होपमैन इज ब्रोमोमाइड degradation, or it is also known as Hofmann's rearrangement, in case of Curtius rearrangement, in case of Schmidt rearrangement, in case of Lawson rearrangement, only the substrates are different and the intermediate is the same, which upon hydrolysis gives primary amines. That means product is also the same. In case of all the four rearrangements, these three and Hofmann rearrangement, product is the same. Now we will discuss the mechanism of Curtius, Schmidt and Lawson rearrangement one by one. ये याद रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लिख सकते हो, कॉपी पे नोट कर सकते हो, यहाँ पे ये मैं मिटा दूंगा। नाउ वी विल डिस्कस द रीअरेंजमेंट ऑफ ईच एंड वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ ईच एंड एवरी रीअरेंजमेंट। Curtius rearrangement. In case of Curtius rearrangement, RC double bond O N3, when it is subjected to heat, this indicates as the heat in the presence of CHCl3 or C6H6. It is benzene, and there is the formation of RN double bond C double bond O. और इन अदर वर्ड्स डायरेक्टली वी विल से दैट यहाँ पे इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है। जब इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है विच अपॉन हाइड्रोलिसिस गिव्स अस द प्राइमरी अमाइन्स, मींस फ्रॉम एसिड azides when they are subjected to heat there is the formation of primary amine, also there is the formation of वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की फॉर्मेशन हो जाती है। these are the byproducts mechanism. ये याद कीजिए, आप इतना याद रख लीजिए, when acid azides are subjected to heat or in other words you will remember it, thermal decomposition of acid azides in the presence of chloroform or benzene gives primary amines. This very rearrangement is known as Curtius rearrangement. Intermediate मैंने ये भी कहा आप लोगों को कि इन केस ऑफ कर्टियस रीअरेंजमेंट, इन केस ऑफ लॉसन, इन केस ऑफ शेमिट, इन केस ऑफ होफमैन रीअरेंजमेंट, इंटरमीडिएट अल्काइल आइसोसाइनेट होता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, आर के बदले कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। मैकेनिज्म में CH3 C डबल बॉन्ड O, आर के बदले मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया। नाउ या आर ही मैं लूंगा, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आर N double bond N positive, double bond N negative. This is the actual structure of RC double bond O N3 acid azide. यहाँ पे RC double bond O N double bond N positive, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इसका लोन पेयर, अपना लोन पेयर है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, these very acid azides यहाँ पे इस तरह से भी हो सकते हैं,
This very negative charge will move here and this very double bond will move here. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स मैकेनिज्म, यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है दिस विल मूव हियर, ये ट्रिपल बॉन्ड में, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ओ ये पाई बॉन्ड में चेंज हो सकता है, दिस वेरी पाई बॉन्ड विल मूव हियर, यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ एन नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड एन पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड एन, दिस विल बी एसिड एजाइड्स। या तो इस यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ये हो सकती है या ये हो सकती है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, यहां पे एक ही स्टेप में मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिस विल मूव आउट, ये सिंगल बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स -N2 यहां से बाहर निकल जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे व्हाई इट इज नोन एज द रीअरेंजमेंट, देयर इज द रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप, इट शिफ्ट्स फ्रॉम कार्बन एटम टू नाइट्रोजन एटम, ये यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाता है और ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाता है। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही स्टेप पे मैंने यहाँ पे स्टेप कम किया है, क्यों आप लोगों को इजिली ये समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एसिड एजाइड्स आर इन दिस वेरी फॉर्म, याद रख लीजिए, it is RC double bond O, N double bond N positive, double bond N negative, this very negative charge will move here and this will move here. Now in the second step नाइट्रोजन बाहर निकल आएगा और R यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, there is the formation of RN double bond C double bond O, ये R जो ये यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये जब यहां पे शिफ्ट हो जाता है तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, C डबल बॉन्ड O, दिस इज एल्काइल आइसोसायानेट, दिस इज एल्काइल आइसोसायानेट। अगर यहां पे CH3 होगा तो मिथाइल आइसोसायानेट। नाउ इसकी हाइड्रोलिसिस जब हम कराएंगे, हाइड्रोलिसिस एडिशन ऑफ वाटर H2O, माय डियर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो H2O होता है वाटर की शेप बेंट होती है एंड बॉन्ड एंगल 104.5। नाउ ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस वेरी लोन पेयर माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वेरी लोन पेयर अटैक्स दिस वेरी कार्बन एटम। यहां पे मैं ये आपको दिखाऊंगा, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ जाएगा। H2O हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म मैं सिर्फ यहां पे दिखाऊंगा, बाकी किसी भी स्टेप में, किसी भी रीअरेंजमेंट में अब मैं नहीं दिखाऊंगा। यहां पे देख लीजिए, दिस वेरी लोन पेयर अटैक्स दिस वेरी कार्बन एटम, जब इसने इस कार्बन एटम पे अटैक किया, इसकी वैलेंसी कितनी बढ़ गई, 5, ये यहां शिफ्ट हो गया। नाउ Rn यहां पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O H एंड पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर कार्बन को डोनेट किया। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वेरी प्रोटॉन विल मूव हियर। नाउ जब ये प्रोटॉन यहां, दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, जो ये प्रोटॉन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, प्रोटॉन यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये जो ये electron pair है, that means this very bond, 2 electrons, these will shift here and there is the formation of that very proton will move here, RNH, C double bond O single bond H। यहां पे अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, because this very bond, these very 2 electrons are moving here। Now my dear students, और एक स्टेप में ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये यहां से यहां पे आ जाएगा, दिस वेरी बॉन्ड विल मूव हियर, यहां पे प्रोटॉन, वो प्रोटॉन यहां पे आ जाएगा क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ RNH2 प्लस CO2। यहां पे मैंने लिखा, व्हेन एसिड एजाइड्स आर heated in the presence of chloroform or benzene, there is the formation of RNH2, this is primary amine। अच्छी तरह से देख लीजिए, यहाँ एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, यहां से नाइट्रोजन बाहर निकलता है, यहां से प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से
बाहर निकलता है. Now my dear students, in these are two gases, these will escape into the atmosphere and there is the formation of RNH2. Now फिर से मैं यहाँ पे मैकेनिज्म को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि acid acids are in this very form. This is the structure of acid acids, or they will be in this very form. यहाँ पे क्या हो जाता है, जब इसकी acid acids की जब हम thermal decomposition कराते हैं, that means we are giving it the heat, there is the formation of this very N2 will move out and there is the formation of this very intermediate. ये intermediate किस तरह से बन जाता है, यहाँ से जब N2 बाहर निकल आता है, this very R will be shift to nitrogen atom और nitrogen का जो negative charge है that will move here and there is the formation of alkyl isocyanate. This is alkyl isocyanate. Now that very alkyl isocyanate upon hydrolysis gives as the primary amine. ये hydrolysis का mechanism है. वाटर के पास वाटर की शेप एक्चुअली बेंट होती है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट वेरी लोन पेयर विल शिफ्ट हियर, और यहाँ पे ये जो ये पाई बॉन्ड है दैट विल शिफ्ट हियर, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन जो वाटर का होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज, दिस वेरी इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट हियर एंड दिस वेरी प्रोटॉन विल मूव हियर, या इन अदर वर्ड्स ये प्रोटॉन शिफ्ट यहाँ से यहाँ हो जाता है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ RNH, C डबल बॉन्ड O single bond H, this very bond will shift here, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है. एक्चुअली ये इस तरह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड माय डियर स्टूडेंट, C डबल बॉन्ड O, या व्हाट वी कैन से C डबल बॉन्ड O, इसकी शेप लीनियर होती है एज पर हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन. नाउ एज पर वेस्पर थ्योरी उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है एंड शेप लीनियर होती है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोडक्ट इन केस ऑफ कर्टियस रीअरेंजमेंट एंड दिस इज इट इज मैकेनिज्म. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. नाउ वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म फॉर Schmidt रीअरेंजमेंट. Schmidt rearrangement. In case of Schmidt rearrangement, R C double bond OH is treated with HN3 in the presence of acidic medium, whether it may be HCl or H2SO4. There is the formation of RNH2 plus CO2 plus N2. याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी प्रोडक्ट सेम है, मैकेनिज्म RC double bond OH. कार्बोक्सिलिक एसिड्स को जब हम एसिडिक मीडियम में ट्रीट कराते हैं, दैट मींस वी आर ट्रीटिंग इट विद H2SO4 एसिडिक मीडियम. H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. यहाँ पे ये H2SO4 प्रोटॉन डोनेट कर लेगा, दैट विल बी एक्सेप्टेड बाय carboxylic acids and there is the formation of R C double bond O positive H2. That means यहाँ पे lone pairs of electrons हैं, वो lone pairs of electrons प्रोटॉन को डोनेट करता है and there is the formation of R C double bond OH2. यहाँ से जब minus H2O हो जाता है and there is the formation of R C double bond O positive. This is known as acyl cation. इसी कैटायन पे हाइड्रोजोइक एसिड अटैक करता है. हाइड्रोजोइक एसिड की क्या फार्मूला होती है, देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या होती है, N नेगेटिव. देख लीजिए माय डियर, H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव डबल बॉन्ड N नेगेटिव, इसका अपना लोन पेयर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर. एक्चुअली देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड. इट मे बी जिस तरह से RC डबल बॉन्ड N3 मैंने कहा, इट मे बी इन दिस वेरी फॉर्म आल्सो. ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये यहाँ पे, दैट मीन्स इट मे बी RN नेगेटिव सिंगल बॉन्ड N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N.
इस फॉर्म में भी ये हो सकता है. Now my dear students, this very negative charge will attack this very acyl cation. Now what will be the product? R C double bond O N H. इसका जो अपना हाइड्रोजन एटम होता है पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ when this very product is treated with a base, आपने कहीं पे सुना होगा या आप लोगों को पता होना चाहिए. What is a base? A base is a substance which accepts a proton. Which accepts a proton. यहां से जब प्रोटॉन बाहर निकल आता है यहां से, that means that will be accepted by base. There is the formation of R C double bond O N negative single bond N positive triple bond N. That very proton will be accepted by the base. That very proton will be accepted by the, that means there is the loss of minus H positive. Now my dear students, वही step यहाँ से minus N2, यहाँ पे negative charge है, that very negative charge will be shifted here and this very R will move here and यहाँ पे R N double bond C double bond O. That means alkyl आइसो सायानेट की फॉर्मेशन हो जाती है इन केस ऑफ श्मिट रीअरेंजमेंट. यहाँ पे जब एल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट वेरी एल्काइल आइसोसाइनेट अपॉन हाइड्रोलिसिस, जिस तरह से हमने कर्टियस रीअरेंजमेंट में इसकी हाइड्रोलिसिस की, इसका मैकेनिज्म दिखाया, उसी तरह से यहाँ पे भी है, इसी तरह से यहाँ पे भी है माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ श्मिट रीअरेंजमेंट आप लोग इस तरह से याद रख लोगे कि when carboxylic acids are treated with hydroxoic acid in acidic medium, there is the formation of primary amines. There is the formation of primary amines. And remember that in case of Schmidt rearrangement, there is the intermediate alkyl isocyanate. Alkyl isocyanate. यहाँ से mechanism same, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस इसकी करा दीजिए एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन तो पहले ही इसकी फॉर्मेशन हो गई. आफ्टर दैट लॉसन रीअरेंजमेंट बहुत सिंपल है, याद रख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स. इन केस ऑफ कर्टियस एंड श्मिट रीअरेंजमेंट अभी मैकेनिज्म में भी आप लोगों ने देख लिया. लीविंग ग्रुप कौन सा है फ्रॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लीविंग ग्रुप होता है N2 in case of both the mechanisms Curtius and Schmidt. Now in case of Lawson rearrangement हम देख लेंगे सिर्फ लीविंग ग्रुप कौन सा है. इंटरमीडिएट सेम होता है Lawson rearrangement for the preparation of primary amines. R C double bond O N H O single bond OH या NHOH plus R C double bond O Cl. When hydroxymic acid is treated with acid chlorides, when hydroxymic acid is treated with acid chlorides, there is the formation of RNH2 plus CO2 and plus R C double bond OH. यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लीविंग ग्रुप हम देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म. यहाँ पे क्या है मैकेनिज्म, R C double bond O N H O H plus R C double bond O C N. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो इस कार्बोनाइल कार्बन को अटैक करता है, यहाँ पे क्लोरीन बाहर निकल आता है. दैट मीन्स इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे मैं लिखूंगा N सिंगल बॉन्ड H, O पॉजिटिव H, C डबल बॉन्ड O R. देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स,
नाउ यहां से क्लोरीन -Cl नेगेटिव बाहर निकल आता है, -Cl नेगेटिव बाहर निकल आता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देख लीजिए, ऑक्सीजन पे जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहां से प्रोटॉन लॉस हो जाता है, -H पॉजिटिव। जब यहां से H पॉजिटिव बाहर निकल आता है, वो जो यहां पे ये जो बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट 1 सिंगल बॉन्ड दैट इज मूविंग हियर। ऑक्सीजन पे अब R C डबल बॉन्ड O N सिंगल बॉन्ड H O C डबल बॉन्ड O R। यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ we are treating it with the base. For example, we are treating it with the base. We are treating it with the base. जब बेस ने यहां पे प्रोटॉन को अटैक किया, प्रोटॉन को जब अटैक किया तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, R C डबल बॉन्ड O N नेगेटिव O C डबल बॉन्ड O R। देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ दिस वेरी नेगेटिव चार्ज विल मूव हियर, दिस विल मूव आउट, यहां पे विद इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। नेगेटिव चार्ज जब यहां से यहां मूव कर जाता है, दिस वेरी आर विल मूव हियर एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, अच्छी तरह से देख लीजिए, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और प्लस R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। बस यही एंट्रेंस में पूछा जाता है। इन केस ऑफ लॉसर अरेंजमेंट लीविंग ग्रुप कौन सा है? लीविंग ग्रुप, इट इज R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। R यहां से जब प्रोटॉन लॉस हो जाता है, वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड OH, R C डबल बॉन्ड OH। नाउ देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे भी एल्काइल आइसोसायनेट की फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद इस अल्काइल आइसोसायनेट की हाइड्रोलिसिस जब हो जाती है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ RNH2 प्लस CO2, जो आपका प्रोडक्ट RNH2 CO2 और RCO नेगेटिव, उसके साथ प्रोटॉन रिएक्ट कर जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पे मैंने हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म पहले ही रीअरेंजमेंट में मैंने आप लोगों को दिखाया है। Thus, my dear students, we have completed here the preparations of amines. In this very case, in these very rearrangements, we were in a position to prepare only primary amines. We are not in a position to prepare secondary or tertiary amines through these very rearrangements. My dear students, याद रख लीजिए, जो मैंने पहले यहाँ पे चार्ट आप लोगों को दिखाया उसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान दे दीजिए। और एक चीज यहाँ पे याद रख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को दिखाया कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस तरह से हो जाती है और किस तरह से यहाँ पे इंटरमीडिएट अल्काइल आइसोसाइनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ we have completed here the preparations of amines. After that we will discuss the properties, physical as well as chemical properties of amines. Now my dear students, तब तक के लिए goodbye.